Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Let us start. Okay. Yes, ma'am. Okay. So this is today's topic is our new module. Okay, that is your Yes, ma'am. traffic engineering. This is the new module of transportation engineering, which is your traffic engineering. Okay. So the topic that or the lecture that we will learn today is the first lecture of your traffic engineering is the road user and vehicular characteristics. See, there are different elements of a transportation engineering. Okay, each element has its own property or characteristic which will define the particular traffic, nature of the traffic, Yes, how ma'am. it occurs. Okay, what is the whether it is called jam traffic, whether it is called less jam traffic. Okay, so condition of the traffic, it solely depends upon the characteristics of its element. Okay, elements of the transportation system. So first we will learn Yes, ma'am. what are those elements, then we will learn among those elements these two are the most important element of the transportation system, and their property will severely affect the characteristics of the traffic flow. Okay, see why Yes, we ma'am. are saying traffic flow. Flow means flow का मतलब क्या है? It is flowing. Okay, flowing like a liquid. Okay, so like a fluid it is flowing. So similarly our traffic is also, if we look um, the if we take some video photography and if we play the traffic, okay, in a fast speed, what we will see, it is flowing like a river stream. Okay, that river is what, roadway is kind of the river. Okay, and water is what, traffic itself is the water, it is flowing in particular direction. Okay, so that's why we are comparing the traffic system with the fluid system. It is like a fluid property as such as flow, or we can say discharge, density, all these things are there in a fluid to define a particular fluid characteristics. Here also there are different parameters which will define the traffic condition. Okay, now before going into those details, we must have some idea about the different elements of the transportation system and what are the characteristics of those elements. Okay, so we will learn definition of transportation system, elements of transportation and traffic system. Okay, among the within this element there are two most important elements. We will learn about them only in this lecture. Okay, that is the road user and vehicle characteristics. Okay, now before going to details, what do you understand by the system? Anyone? कोई भी सिस्टम, जैसे एक एग्जांपल लो कंप्यूटर सिस्टम, तुमको अगर कोई सिस्टम बोलता है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि किसको सिस्टम हम बोलेंगे? तो फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम बोलने से तुमको क्या क्या नजर आता है कि किस किस चीज से ये कंप्राइज है? सिस्टम बोलने से क्या मतलब आता है, क्या समझ में आता है तुम लोग को? एनीवन? हेलो? अच्छा तो बोलो. See, computer system, if you look at a system, computer system, what we see? It comprises of several components, right? मतलब कि वो सिर्फ एक सिस्टम में सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं है. देयर आर सेवरल अदर कंपोनेंट्स, ओके, व्हिच आर वर्किंग टुगेदर. ऑल दिस कंपोनेंट्स आर वर्किंग टुगेदर. ओके, तो फुलफिल टू गिव अस वन आउटपुट. कंप्यूटर से हम कुछ आउटपुट मिल रहा है, लेकिन वो आउटपुट के लिए हमको इनपुट देना पड़ रहा है. इनपुट के लिए हमको बहुत सारा कंपोनेंट्स लग रहा है, राइट? सो इट इज द व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन of the several components together to fulfill one purpose. Okay, so transportation system is also like a combination of different elements. Hello, ma'am.
कितना देर से गया था ये? होगा मैम 3 मिनट। ओहो, तो हम कहाँ पे थे? स्लाइड वाला कीजिए। ये सिस्टम में थे? मैम कंप्यूटर मैम यस मैम। सिस्टम। हाँ हाँ यस मैम। हाँ, हम पूछ रहे थे राइट, कंप्यूटर सिस्टम क्या चीज से बनता है? कंप्यूटर सिस्टम एक क्या है? इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ several components, okay, which are working together to fulfill one purpose. तो सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेलो मैम, एक स्टूडेंट ज्वाइन होगा। सत्यजीत तो हो गए। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी क्या है? इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, राइट, और कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, विच आर वर्किंग टुगेदर टू फुलफिल वन पर्पस। तो यहाँ पे पर्पस क्या है बोलो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का? हम क्या बोले थे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पर्पस क्या होना चाहिए? एनीवन? इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे सब लोग? वही तो मैम। 15 मिनट हो गया। तो यहाँ पे पर्पस क्या है? टू कैरी गुड्स एंड पीपल, राइट। हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बना रहे हैं? रास्ता क्यों बना रहे हैं? सो दैट यू कैन रीच, हाँ, टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। यहाँ पे भी पर्पस यही है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, सामान हो या खुद यूजर्स ही हो, राइट। तो अब यहाँ पे बोलो व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स, क्या क्या होना चाहिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? अगर तुमको बोला ठीक है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तुम बनाओ, तो तुमको क्या क्या बनाना पड़ेगा? जैसे कंप्यूटर बनाओ बोलेगा तो क्या होगा? कंप्यूटर में सीपीयू, तुम्हारा यूपीएस, तुम्हारा कीबोर्ड, तुम्हारा माउस, ये सब लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, मॉनिटर रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या देना चाहिए जिससे कि सब कुछ मिलाकर, हाँ, हम बोलेंगे अच्छा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोडवे, वेरी गुड, रोडवे और ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली द सिग्नल्स, राइट, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। एनीवन? क्या क्या हो सकता है जिससे तुम्हारा ट्रैफिक को मतलब अच्छी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल, यस, मूव करने में हेल्प करेगा? एक है सिग्नल, राइट, एक है साइंस, राइट, साइन एंड मार्किंग जो है तुम्हारा रोड साइन, रोड मार्किंग, वो भी तुम्हारा वही है, सिग्नल ही है, ठीक है। और बहुत सारे जगह पर क्या है, आइलैंड्स हम लोग देते हैं, या चैनलाइज्ड आइलैंड हम लोग बोलते हैं, राइट। सो ऑल दिस आर द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो एक हो गया रोडवे, एक होगा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होना चाहिए? और क्या चाहिए? इतना से हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? रास्ता बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस सब दे दिए। और किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? रोड यूजर्स के लिए कर रहे हैं ना। तो रोड यूजर्स आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इसीलिए हम बोल रहे थे रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसा ट्रैफिक होगा, पूरा डिपेंडेंट है, राइट। अच्छा ट्रैफिक है या बुरा ट्रैफिक है, यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन है या कि सेफ है, सब तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम तुम्हारा ये जो रोड यूजर्स है उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उन लोग के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी विल लर्न दोस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली टुडे, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होना चाहिए? किसमें जाओगे, किसमें ट्रैवल करोगे? रोड यूजर किसके लिए हो गया, राइट। कहाँ से ट्रैवल करोगे? रास्ता हो गया। उसको कैसे कंट्रोल करोगे? ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस हो गया। अब किसमें ट्रैवल करोगे? दैट इज द व्हीकल। मतलब कैरी करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट, व्हीकल उसको बोलते हैं। अब वो व्हीकल तुम्हारा कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रैम हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, शिप हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, लॉरी, ट्रक जो भी है, ऑल दिस आर कॉल्ड द व्हीकल्स व्हिच विल कैरी गुड्स एंड पीपल, ओके। सो ये है ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारा एस्केलेटर, कन्वेयर बेल्ट, ऑयल पाइपलाइन, ऑल दिस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओनली, ओके। ये अदर एग्जांपल्स है। अब एलिमेंट्स हम लोग बोल चुके हैं। फर्स्ट है रास्ता, राइट, ये तो चाहिए, कहाँ से होगा? वाटरवे, रोडवे, रेलवे, एयरवे, राइट। दूसरा है तुम्हारा व्हीकल्स, कार, शिप, ट्रेन, ट्रैम, एरोप्लेन जो है, राइट। तीसरा है तुम्हारा यूजर्स
अब बहुत टाइप का होता है, एक होता है जो ड्राइव कर रहा है, मतलब ड्राइव जो कर रहा है उसको बोलते हैं ड्राइवर। ओके, सो ड्राइवर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ड्राइवर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोड यूजर्स में। ओके, दूसरा है जो पेडिस्ट्रियन, जो रोड यूजर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले लोग को नहीं बोलते हैं, मतलब पैदल्स भी चलते हैं, राइट, बहुत, ये जो क्रॉस कर रहा है उन लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मतलब कैसे करेगा, ये परसेप्शन, इन लोग का रिएक्शन टाइम कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ट्रैफिक, राइट। बाइसाइक्लिस्ट, पैसेंजर्स, सो ऑल दिस आर द यूजर, जिसके लिए दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज मेड, मतलब बनाया गया है। ओके, दूसरा चौथा है तुम्हारा कंट्रोल, साइन, सिग्नल्स, ये सब है, ये इसको बोलते हैं आइलैंड, रोटरी आइलैंड, या ये जो है चैनलाइज्ड आइलैंड इसको बोलते हैं। ओके, ये क्यों नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सो तो ये हो गया। ओके, अब इसमें से हम लोग को दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है, एक है कि व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ट्रैफिक सिग्नल साइन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। कितना सारा टाइप्स का होता है, क्लासिफिकेशंस क्या है। ओके, और ये जो रोडवे है, रोडवे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, पेवमेंट डिजाइन इसमें आ रहा है, ठीक है। ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, इसका अलग से चैप्टर है। और आज का जो है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द रोड यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई बोल सकता है कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रोड यूजर, सपोज यू आर द ड्राइवर, तुम्हारे किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इट विल अफेक्ट द ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक फ्लो जो हो रहा है वो उसके ऊपर, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, तो कोई भी तुम्हारा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो कि अच्छा मेरा ये अगर प्रॉपर्टी होगा तो ऐसा ट्रैफिक होगा, नहीं मेरा अगर वैसा प्रॉपर्टी होता तो कुछ दूसरा ट्रैफिक होता, मतलब ट्रैफिक फ्लो जो हो रहा है वैसा होता है। तो बोलो एनी वन एग्जांपल, वन प्रॉपर्टी। बोलिए मैम, एक बार। टेल मी, गिव मी ओनली वन एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल, बहुत सारा है, अभी हम दिखाएंगे क्या क्या है, ठीक है। उसमें से कोई एक तुम लोग बोलो कि तुम्हारे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है, रोड यूजर का जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट विल अफेक्ट द ट्रैफिक सिस्टम। मतलब कि तुम्हारा अगर ये प्रॉपर्टी रहता तो अलग से ट्रैफिक फ्लो होता, अगर तुम्हारा ये प्रॉपर्टी नहीं रहता तो अलग से ट्रैफिक फ्लो होता है। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी बोलो रोड यूजर का, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई बोल सकता है एनी एग्जांपल? अच्छा, तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस क्यों निकालते हो, क्यों कर, लाइसेंस के लिए क्या क्या लगता है, मेन क्या चेक करता है? कोई बाइक नहीं चलाता है क्या? बाइक चलाने वाले लोग को बोल सकते हो, तो तुम लोग का कैसा, कोई कोई होता है कि मतलब रफ ड्राइव करता है, कोई कोई एकदम स्मूथली ड्राइव करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये? रोड के ऊपर मैम। रोड तो ठीक है, वो तो रोड के ऊपर हो गया, हम तुम्हारे ऊपर बोल रहे हैं। तो रोड के ऊपर तुम मतलब एक है अच्छा बाइक चलाने वाला और एक है अभी अभी सीखा हुआ, तो रोड एक ही रोड है, एक ही रोड से, एक ही चढ़ियाल वाला रोड से जा रहा है, लेकिन एक अच्छा स्पीड से चला रहा है, मतलब ठीक ठाक केयरफुली चला रहा है, और एक डर डर के स्लोली स्लोली चला रहा है। तो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है वो दोनों में? कॉन्फिडेंट के ऊपर। कॉन्फिडेंस, उसके वो कॉन्फिडेंस आया क्या? फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, यस, फिजिकल फैक्टर्स मतलब क्या आता है यहाँ पे? ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है किसके ऊपर? स्किल के ऊपर, राइट। वो स्किलफुल है वो वाला, अभी मतलब क्या बोलते हैं, अभी स्किल नहीं हुआ उतना क्योंकि वो न्यू है, राइट। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, ये तीन फैक्टर मेनली यूज करता है। ओके, यहाँ पे तो फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। अब फिजिकल में क्या आना चाहिए बोलो तो? फिजिकल में मतलब क्या बोलो? बोलो बोलो। अरे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में तो मेन वही चाहिए तुमको।
मैम फिजिकल एज में होना चाहिए, एज 18 से ऊपर होना चाहिए। एज हो गया, और क्यों? अच्छा वो ठीक है, एज ऊपर हो गए है, और मैम स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर हो गया। अब स्ट्रेंथ किस किस के ऊपर होता है? देखो, हाइट के ऊपर मैम, हाइट। हाइट और अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो बोलोगे हाँ ये सब है, ठीक है। मैम हैंडीकैप है कि नहीं उसके ऊपर भी होता है। ये हैंडीकैप है कि नहीं उसके ऊपर भी होता है, और क्यों मेडिकल हैंड, मेडिकल क्या है? मेडिकल में क्या आता है पहला? आई साइट। यस, आई साइट, आईसाइट हियरिंग प्रॉपर्टी, आई साइट, ये सब आता है, राइट। अब तुम जो बोले स्ट्रेंथ वेथ, वो भी आता है। देखो क्या क्या है, फर्स्ट है विजन, ठीक है, हियरिंग, ठीक है, फैटिग। फैटिग अब ये आता है कि तुम बहुत मतलब एक ही लंबा जर्नी कर रहे हो, राइट। या होता है कि तुम मतलब दिन ऑफिस गए थे या कॉलेज गए थे, पूरा सारा दिन तुम्हारे ऊपर प्रेशर 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 होने की वजह से योर मतलब क्या होता है, फैटिग हो जाते हो, राइट, टायर्ड हो यस मैम जाते हो। तो अब भी तुम्हारा वो जो चेंज हो जाता है, राइट। तुम सुबह जब ड्राइव करते हो तो अलग सा मूड में होता है, अलग सा ड्राइविंग होता है तब, अब एकदम लास्ट में जब करते हो तो तब अलग सा होता है, राइट। यस इलनेस, मैम जो स्ट्रेंथ बोल रहे हो, इलनेस के ऊपर भी राइट यस डिपेंड मैम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अल्कोहल, ये सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल कंजम्पशन, ओके। यस अगर मैम तुम कुछ ऐसा नहीं करके कर रहे हो तो ठीक ठाक है, वहीं जब ये करके करोगे तो उल्टा हो जाएगा। एंड लास्टली द रिएक्शन टू द ट्रैफिक सिचुएशन, मतलब तुम्हारा परसेप्शन रिएक्शन टाइम कैसा है। अब ये परसेप्शन रिएक्शन टाइम ही तुम्हारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, देखना, एज के ऊपर, राइट, कॉन्फिडेंस के ऊपर, ये सब क्या बोलते डिपेंड करेगा। मतलब कि तुम कितना जल्दी रिएक्ट करोगे, कोई भी अगर सिचुएशन आया, रास्ते के सामने कुछ आ गया, अचानक से कोई आ गया, पास हो रहा है, ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करोगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एज, मतलब जो यस अभी मैम तुम लोग जैसा रिएक्शन टाइम होगा बहुत कम, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट होगा, और जो थोड़ा एजेड है, राइट, थोड़ा मतलब उन लोग का क्या है, विजन भी प्रॉब्लम है, हियरिंग भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, उन लोग थोड़ा ज्यादा टाइम करके रिएक्ट करेगा। तो दोनों ही केस में अलग अलग ट्रैफिक सिस्टम हो जाएगा, राइट। दूसरा है मेंटल, मेंटल नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस, ये जो हम बोले थे एकदम स्किल जो था, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और एक है कि नया एकदम न्यू कमर, राइट। तो वो कैसा चल रहा है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ओके। एंड नॉलेज मतलब ये जो साइन बोर्ड तुम्हारा गाड़ी चलाने में भी बहुत कुछ लगता है, राइट, तो कहाँ पे क्या है, ये सब नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है तुम्हारा ये ड्राइविंग प्रॉपर्टी कैसा होगा। एंड ड्राइविंग प्रॉपर्टी के ऊपर ये ट्रैफिक सिस्टम में भी डिपेंड करता है, ओके। लिटरेसी है मतलब कि साइन बोर्ड पढ़ने में अगर दिखाई दे रहा है, साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन उसका यस मतलब नहीं समझ में आया है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, वहां पे था कि स्टॉप या स्लो गो, मतलब स्लो डाउन, ऐसा कुछ सिग्नल है, राइट, या लिमिट दे दिया है। तो तब अगर तुमको ये लिटरेसी ये सब पढ़ा लिखा थोड़ा कम होने से भी, थोड़ा अभी तो साइन बोर्ड तो सिंबल दे दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर मैसेज होता है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा तब, राइट। तो दीज आर द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है साइकोलॉजिकल, मतलब ये है तुम्हारा अटेंटिवनेस, हाउ मच यू आर अटेंटिव वाइल ड्राइविंग, राइट। तुम्हारे अंदर दर्द है कि नहीं है, एंगर, फियर, एंजाइटी। और लास्ट में क्या है तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब बहुत अच्छा है। फिजिकली तुम बहुत अच्छे हो, रिएक्शन टाइम भी बहुत अच्छा है, मेंटली भी बहुत अच्छे, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, लेकिन साइकोलॉजिकल में प्रॉब्लम हो गया। मतलब कि क्या है कि यू आर रैश ड्राइविंग, मतलब तुमको ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में वो नहीं आता है, राइट, यू डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग, तब क्या करोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत हाई स्पीड में जाएगा, राइट, मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस हो जाएगा। सो जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स, ये सब साइकोलॉजी में आता है, ओके। एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द नॉन ट्रैफिक इवेंट्स, मतलब ये लड़की देखो पानी पी रही है, ओके, पानी पीते हुए फोन आ गया, अब ड्राइविंग भी करे, फोन भी आया, सो दिस आर द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द नॉन ट्रैफिक इवेंट्स, राइट। तो ऑल दिस आर द साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड फिजिकल। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स विल, इसकी वजह से तुम्हारा ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है, ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने से ट्रैफिक सिस्टम भी चेंज हो जाता है, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर पूछेगा कि क्या क्या रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दीज आर द रोड यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। हेलो, आवाज गया यस मैम। ओके, अच्छा। अब आते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये तो सिर्फ हम लोग हेडिंग बोल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक्स आता है, जैसे कि है तुम्हारा ड्राइवर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअल एंड रिएक्शन टाइम, ओके।
तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है विजन का, और तुम कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, उसको बोलते हैं परसेप्शन रिएक्शन टाइम। ओके, ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, एसएसडी ओएसडी मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन में। ओके, एंड अदर्स आर हियरिंग, फिजिकल एंड पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी है अदर्स, ये भी इफेक्ट करेगा, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी दो में हम लोग देखते हैं कि विजुअल एक्यूटी एक टर्म आता है, विजन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक विजुअल एक्यूटी टर्म आता है। ओके, मतलब जिस लोग का चश्मा है वो लोग बोल सकेगा 6/6, राइट, 6/12 ऐसा आता है ना, उसका मतलब क्या है? एक है कि स्टैंडर्ड, सपोज एक स्टैंडर्ड इंसान है, स्टैंडर्ड सब हर किसी को हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड से, ठीक है, स्टैंडर्ड इंसान है जिसका सब कुछ आईसाइट सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, वो एक लेटर पढ़ेगा, बोर्ड में कुछ लिखे हो तुम, ठीक है, वो लेटर वो कितना दूर से क्लियरली देख पाएगा, ठीक है, वो एक है, सपोज वो 12 मीटर दूर से या 12 फीट दूर से वो देख पाएगा, अच्छी तरह से देख पाएगा वो लेटर, ठीक है। और जिसका 6/12 है एक्विटी, विजुअल एक्विटी 6/12 है, उसको कितना पास में जाना पड़ेगा, उसको मतलब वही लेटर कितना डिस्टेंस के बाद क्लियरली दिखेगा, सिर्फ 6 फीट के बाद, ठीक है। मतलब सपोज अनिमेश का चश्मा है, ओके, और शायद अंकुश का नहीं है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अंकुश है स्टैंडर्ड, दोनों का ही है मैम, ठीक है, हम ऐसे एग्जांपल बोलते हैं, अनिमेश का चश्मा है, अंकुश का नहीं है, और अंकुश है स्टैंडर्ड, मतलब उसका सब कुछ ठीक है, ठीक है, आई प्रॉपर्टी ठीक है, आई ठीक है, तो वो ब्लैक बोर्ड में हमने कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो 12 फीट से उसको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका 6/6 है, ये अंकुश का है 6/6, ठीक है, अब अनिमेश का है 6/12, मतलब कि क्या है कि वो अंकुश 12 फीट दूर से क्लियरली जिस चीज को देख रहा है, क्या बोलते हैं, अनिमेश को देखने के लिए और पास जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना दूर से वो क्लियरली देखेगा, वो 6 फीट दूर से क्लियरली देखेगा, दैट इज कॉल्ड द विजुअल एक्विटी। ओके, तो इस चीज के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, कहाँ पे डिपेंड करेगा, बोलो ये कहाँ पे यूज होगा ये वाला प्रॉपर्टी, जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो कहाँ पे ये वाला विजुअल एक्विटी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? मैम रोड साइंस के लिए। यस, जो पढ़ना है रोड साइंस जो है वो सब तुमको एकदम, तुम तो दूर से आते हो, रोड साइंस तो एकदम तुम्हारे पास में नहीं होता है, तुमको दूर से दिखाई देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके तुम रिएक्ट करोगे, तुमको तो रिएक्ट करने में भी तो टाइम लगेगा ना, और उसके साथ तुम्हारा गाड़ी को भी रिएक्ट करने में टाइम। अरे क्यों लो, हेलो अनिमेश, एम आई ऑडिबल? यस मैम, अब लेफ्ट हो गए थे। हाँ, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है दूर। हाँ, अच्छा, प्रेजेंट नहीं किया ना हम, ना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, अभी टाइम भी तो तुम्हारा सर भी रहा है। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, क्या रह रहा है, विजुअल कैरेक्टर्स ऑफ डाइवर्स। देखो, तो उसमें साइन बोर्ड पढ़ने में ये काम लगेगा, ठीक है, और एक काम लगेगा कहाँ पे तुम्हारा, हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ पे काम लगेगा। ओके, तो स्टैटिक विजुअल एक्विटी, डायनामिक। स्टैटिक मतलब दूर से तुमको लेटर पढ़ना है क्लियरली, व्हेन यू विल एबिलिटी टू सी द स्मॉल डिटेल्स क्लियरली, उसको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग डिस्टेंट ट्रैफिक साइंस। डायनामिक मतलब है जब तुम्हारा गाड़ी मूव कर रहा है, तब मोशन में है ना, तब भी तुम्हारा वो एक एक्विटी लगेगा कि कितना दूर से तुम क्लियरली देखोगे जब तुम्हारा गाड़ी वाज इन मोशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक विजुअल एक्विटी। ओके, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट विजन प्रॉपर्टी इज योर कलर विजन, मतलब वो मेनली होता है ये जो रेड, एम्बर, ग्रीन, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में, मतलब ये सिग्नल्स वगैरह में ये वाला ये विजन प्रॉपर्टी लगता है। रेड, ग्रीन और येलो होता है। हाँ, किसी किसी का कलर ब्लाइंडनेस रहता है, राइट, मतलब वो रेड और येलो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ऐसा भी होता है। ओके, तो वहां पे ये लगेगा। तो अब आता है फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन मेनली क्या क्या है, एक्यूट और क्लियर विजन कोन। हम लोग का जब विजन है ना वो बेसिकली कैसा होता है, अगर हम डायग्राम करेंगे तो वो होता है 3D में
कोन शेप में होता है। ओके, तो हमको उसी ma'am. कोन में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ आता है, वही हम देख पाते हैं उस कोन के अंदर। ठीक है, तो उस कोन को हम लोग इतना भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक है एक्यूट कोन, मतलब छोटा सा एकदम कोन जो होगा, ठीक है, इसका Yes, डिग्री ma'am. कितना है, 3 डिग्री टू 10 डिग्री। उस कोन में तुम क्या कर पाओगे, उस कोन में तुम लेजेंड को रीड कर पाओगे। लेजेंड मतलब जो लेटर्स वेटर्स लिखा गया है साइन बोर्ड में, कहीं पे मैसेज में, जहाँ पे तुम्हारा डैशबोर्ड में जो लेजेंड्स ड्रॉ किया गया है या लिखा गया है, उसको तुम क्लियरली पढ़ पाओगे अगर उस विजन, उस कोन में तुम्हारा वो लेटर या लेजेंड्स अगर आया तो, साइन बोर्ड अगर। दूसरा है फेयरली कोन, और वाइडर कर देंगे और थोड़ा चौड़ा कर देंगे कोन को। कितना डिग्री है, 10 टू 12 डिग्री। इसमें क्या हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कलर्स एंड शेप। ठीक है, पेरिफेरल मतलब तुम्हारा अगल बगल, तुम खुद देखो, तुम Yes. मतलब साइड से 90 डिग्री तक का तुम लाइन ऑफ साइट से, तुम्हारा लाइन ऑफ साइट गया उससे 90 डिग्री लेफ्ट एंड राइट में तुम क्लियरली मतलब कुछ तुमको दिखाई देगा कि कुछ है 90 डिग्री में, राइट। लेकिन ऊपर और नीचे तुमको क्लियरली नहीं दिखेगा, कुछ एंगल तक ही तुमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना एंगल में दिखाई देगा, ऊपर में 60 डिग्री अबव तुमको कुछ परसेप्शन होगा, और 70 डिग्री बिलो तक तुम कुछ देख पाओगे। ठीक है, बिलो अबाउट लाइन ऑफ साइट। जैसे कि ये देखो, ये हो गया एक्यूट कोन, ये बोलते हैं, ये सब है कोन। Yes. कोन, तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्यूट कोन। इस एरिया के कोन के अंदर तुम क्लियरली क्या देख पाओगे, लेजेंड को पढ़ पाओगे। लेजेंड इस में आ गए, तुमको मतलब नहीं पढ़ पाओगे कि क्या लिखा है, क्या साइन है, कुछ नहीं दिखेगा तुमको, राइट। तुमको कब दिखेगा, जब वो लेजेंड साइन इसके अंदर आएगा, तुम्हारे ये कोन ऑफ विजन के अंदर में आएगा तब। ठीक है, फेयरली कोन में क्या दिखेगा, सिर्फ कलर शेप कैसा है वो तुमको एहसास होगा, फील कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाओगे। डायग्राम आएगा मैम, हाँ, ये डायग्राम आ सकते हैं एग्जाम में? ये तुम पढ़ सकते हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, इट इज नॉट लाइक ओके दैट, मैम. बट इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब याद रखना है। ठीक है, दूसरा है पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल मतलब ये है, देखो, मतलब तुम्हारे अगल बगल 90, राइट लेफ्ट में 90 डिग्री लाइन ऑफ साइट अगर ये है तो राइट लेफ्ट में 90 देखो, राइट लेफ्ट आई में 90 देखो, 90 डिग्री में देखो, कुछ तो दिखाई देगा, राइट। लेकिन तुमको वहां पे पढ़ाई अगर वहां पे किसी ने कुछ रख दिया है, बोर्ड रख दिया, तो तुमको समझ में आएगा, तुम पढ़ पाओगे नहीं, राइट। लेकिन यू कैन फील उस एरिया में क्या क्या है, तुम फील करते हो। और ये लाइन ऑफ साइट के 60 डिग्री अबव तुम कुछ देख पाओगे, और 70 डिग्री बिलो तुम कुछ देख पाओगे। ओके, तो मेनली ये कहाँ पे यूज होता है, ऑल दीज आर फॉर दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जनरली नॉट सीन। जो स्टेशनरी है, गाड़ी में जब जाते हो, जब गाड़ी मोशन में होता है तब तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब व्हेन यू आर इन मोशन, गाड़ी चला रहे हो, तो पेरिफेरल साइड में जब कुछ गाड़ी उस तरफ से आ रहा है, 90 डिग्री क्रॉसिंग से आ रहा है, ठीक है, या कोई साइकिल आ रहा है, तुमको दिखाई देगा कि हाँ कुछ आ रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा कोन ऑफ विजन। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, ये जो पेरिफेरल विजन है तुम्हारा कम होता होता जाएगा, जो डिग्रीज है वो तुम्हारा कम होता होता है। ऑब्वियसली तुम देखो, जब स्पीड में चलाते हो तो साइड से क्या आ रहा है नहीं आ रहा तुमको उतना दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो वही है, उसका डिक्रीज होता जाएगा वो। यस मैम. ओके, तो दीज आर द फील्ड ऑफ विजन्स। ओके, अब इसमें भी बहुत सारा विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और आता है, जैसे एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेशन का मतलब है कि फोकस, जब तुम्हारा आई का लेंस का फोकस चेंज होता है, मतलब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमको साइन बोर्ड पढ़ाई, तुम साइन बोर्ड की तरफ देखे, तुम्हारा फोकस चेंज हो गया, अब तुम साइन बोर्ड से रास्ते की तरफ देखोगे, तब तुम्हारा फिर से लेंस का फोकस चेंज होगा, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ओके, स्टैटिक विजुअल तो हम लोग क्लियरली समझ चुके कि जिस साइड में तुम्हारा, जिसकी वजह से यू कैन इजीली रीड द मैसेजेस और रीड द साइन बोर्ड्स। ओके, एडेप्टेशन है तुम्हारा लाइट को अडेप्ट करने का, मतलब तुम सडनली तुम जा रहे थे रास्ते पे, ठीक है, सडनली तुम्हारा सामने टनल आ गया, तो क्या होगा, टनल में लाइट होगा, देयर विल बी चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी, राइट। तुम खुला आकाश के नीचे जो लाइट इंटेंसिटी और टनल के अंदर ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा डार्क होगा, या तुम खुद ही बोलो, तुम अचानक से तुम बैठे थे, लाइट था, रात को करंट चला गया, तो कुछ टाइम लगेगा तुमको अडेप्ट करने में, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द अडेप्टेशन, मतलब कि तुरंत अगर लाइट गया तो तुरंत तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैंक, लेकिन स्लोली स्लोली अब तुम नाइट विजन तुम्हारा ऑन हो जाएगा, मतलब तुम नाइट में, मतलब करंट नहीं है, लाइट्स नहीं है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स,
उसको बोलते हैं एडाप्टेशन, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ विजुअल फैक्टर। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे गाड़ी चलाते हो, राइट। सडनली तुम अचानक तुम टनल में चले गए या टनल से बाहर आ गए, तो हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू अडेप्ट, ओके, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। सो दीज आर द सेवरल फैक्टर्स, प्लीज रीड दिस। यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है और कहाँ कहाँ पे इसका यूटिलिटी है ये भी दे दिया है, ओके। जैसे तुम्हारा है ग्लेयर सेंसिटिविटी, मतलब सामने से तुम्हारा अचानक क्या बोलते हैं, सामने से एक गाड़ी आ रहा है, अचानक तुम्हारे ऊपर फ्लैश लाइट ऑन कर दिया, तो क्या होगा, एक ग्लेयर सेंसिटिविटी उसको बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा तुमको वो एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्लेयर, ओके। तो ये सब है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हम बोले थे फॉर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द परसेप्शन रिएक्शन टाइम। इसको हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको बोलते हैं PIEV थ्योरी भी बोल सकते हैं। अच्छा, PIV का फुल फॉर्म क्या है? PIV का फुल फॉर्म है तुम्हारा परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन, वॉल्यूशन, राइट। इसको इंटेलेक्शन भी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं बोल के इंटेलेक्शन भी बोलते हैं, ओके। तो परसेप्शन मतलब तुमने कुछ देखा, राइट, तुमने कुछ परसीव किया कि तुम्हारे सामने कुछ है। आइडेंटिफिकेशन मतलब अच्छा तुमको अब नोटिस किया कि अच्छा क्या है, ठीक है। फिर तुम्हारा जजमेंट करने का जब वक्त आएगा तो तुम्हारा इमोशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा जजमेंट करने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए। और वॉल्यूशन का मतलब है रिएक्शन, ठीक है। So time taken from perceiving an objection till your reaction, that is called the PRT। अब बोलो इसका वैल्यू कितना होता है, PRT का वैल्यू इन जनरल कितना सेकेंड होता है ऑन एवरेज? परसेप्शन रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए? SSD OSD तो किए हो तुम लोग, रिएक्शन टाइम था ना, T सफिक्स था। 0.15 सेकेंड। हाँ, इतना कम, 2.5 सेकेंड, ठीक है। ऑन एवरेज इट इज 2.5 सेकेंड, ठीक है, 2.5 सेकेंड। दिस इज एज पर एस्थो, अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स, ओके। ये है 2.5 सेकेंड, ठीक है। और एज पर ITE, दिस इज योर क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के हिसाब से इट इज 1 सेकेंड फॉर सिग्नल टाइमिंग। सिग्नल क्या है वहां पे तो पता है तुमको कब रेड होगा कब ग्रीन होगा, यू मतलब तुमको पहले से अंदाज है, राइट। इसलिए टाइम रिएक्शन टाइम कम हो गया। लेकिन ये सब कहाँ पे होता है? SSD, इस सब में तुमको अंदाज नहीं होगा कि कितना दूर से गाड़ी आ रहा है, कब आ रहा है, कब ब्रेक मारना है, राइट। सो तब तुम्हारा रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए इट इज कॉल्ड 2.5 सेकेंड, ओके। अब बोलो ये PRT रिएक्शन टाइम किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा या कम होगा, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? एनीवन? बोलो किस फैक्टर के ऊपर ये PRT वैरी कर सकता है? आछो तो नहीं? यस मैम। আচ্ছা এটা কি হচ্ছে? तो ये फैक्टर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सिचुएशन की। एक्सपेक्टेंसी मतलब है कि तुम एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो, तुम जैसे वो रास्ता डेली ट्रैवल करते हो, ओके। और अचानक तुमको दूसरा रास्ता वहां पे बंद हो गए, तुमको नया रास्ता से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस रास्ते से जा रहे थे, सपोज चढ़ियाल वाला रास्ते से तुम जा रहे थे, तो तुमको पता है कहाँ कहाँ पे बम्पर है, कहाँ कहाँ पे सिग्नल तुमको इंटरसेक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट, कि वहां पे तुम्हारा कब कितना दूर के बाद ये आ रहा है, कौन सा जगह आ रहा है, सब पता है तुमको। लेकिन जब तुम नया रास्ते से जाओगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ नया है, तुमको नहीं पता कि कितना दूर के बाद बम्पर है, कितना दूर के बाद सिग्नल है, कितना दूर के बाद इंटरसेक्शन है, कितना दूर के बाद टर्निंग लेना है, यू डोंट नो, राइट। तो किस फैक्टर, कौन सा केस में तुम्हारा PRT ज्यादा होगा, रिएक्शन टाइम किस केस में ज्यादा होगा? केस 1 मतलब जो तुमको पता है, और केस 2 जो तुमको नहीं पता है। केस 1। केस 1 में ज्यादा होगा रिएक्शन टाइम,
एक एग्जांपल देते हैं, तुमको क्वेश्चन पेपर दिया गया है, एक क्वेश्चन पेपर तुमको सब आता है, राइट, और दूसरा क्वेश्चन पेपर Yes, तुमको कुछ नहीं आता है, कुछ कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, तो कौन सा पेपर तुम जल्दी करोगे खत्म? जो आता है पहला वाला। तो तुम्हारा रिएक्शन उसमें ज्यादा है ना, मतलब जल्दी जल्दी करने का, राइट, तो एक्सपेक्टेड में तुम्हारा रिएक्शन विल बी लेस, राइट, क्योंकि तुमको Yes, पता yes. है हाँ कहाँ पे मैम। ब्रेक मारना है, कहाँ पे नहीं करना है, राइट, और अनएक्सपेक्टेड में तुमको नहीं पता है कहाँ पे ब्रेक मारना नहीं करना है, तो दैट इज ऑब्वियसली यू विल टेक टाइम टू रिएक्ट। तो एक्सपेक्टेंसी में ये, एक्सपेक्टेड में पीआरटी इज लेस, नॉन एक्सपेक्टेड में पीआरटी इज मोर। एज में बोलो आप, एज में किसमें पीआरटी कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा एज में पीआरटी कम हो जाएगा ना कि ज्यादा हो जाएगा? विथ एज योर पीआरटी परसेप्शन रिएक्शन टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज मैम। डिक्रीज। विथ एज इंक्रीज मैम, इंक्रीज। मैम इंक्रीज होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। हम क्या बोल रहे थे, परसेप्शन रिएक्शन टाइम इट डिपेंड्स अपॉन योर हियरिंग, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिपेंड करता है। तो जब एज बढ़ेगा तुम्हारा हियरिंग कैपेसिटी, विजन, ये सब कम होता जाएगा, उसकी वजह से तुम ज्यादा टाइम लोगे रिएक्ट करने में, राइट। दूसरा है फैटिक। फैटिक मतलब है कि बहुत टायरसम हो, ठीक है, तो लेथर्जिक ऐसा है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा कि पीआरटी विल बी ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जब तुम बहुत टायर्ड हो जाओगे, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी में भी ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तब तुम्हारा वहां पे ज्यादा हो जाएगा, राइट, रिएक्शन टाइम। अल्कोहल होने से भी ज्यादा हो जाएगा। सो दीज आर दी फैक्टर्स, ओके। तो ये तो रिएक्शन डिस्टेंस तुमको पता है, यू इफ यू नो द स्पीड, इफ यू नो द रिएक्शन टाइम, सो स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम इज नथिंग बट द रिएक्शन डिस्टेंस। ये हम लोग कर चुके हैं, राइट। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहाँ पे यूज करना है। अब आते हैं रोड यूजर। दो टाइप का था, एक है ड्राइवर। अभी तक जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम किए थे एज अ ड्राइवर, तुम गाड़ी चला रहे थे उस हिसाब से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया, राइट। अब आते हैं तुम रास्ता को यूज कर रहे हो, मतलब यू आर वॉकिंग एंड यूजिंग, यू आर, दैट इज ऑल्सो रोड यूजर। तो उस वाले रोड यूजर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट करेगा, ये बोलो, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जानना चाहिए? तुम रास्ता यूज कर रहे हो लेकिन नॉट विद द व्हीकल, यू आर वॉकिंग एंड यूजिंग द रोडवे, ओके, ट्रैफिक सिस्टम। तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी विल अफेक्ट द ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक सिस्टम? योर अगेन योर रिएक्शन टाइम, ठीक है। कोई गाड़ी आ रहा है, बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, तुम गैप देखो, तुमको क्रॉस करना है, राइट। तो रिएक्शन टाइम कैसा है के ऊपर भी डिपेंड। किसी किसी का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब मेरा जैसा है कि हमको थोड़ा टाइम लगेगा क्रॉस करने में, हम इजीली नहीं कर पाएंगे, और कोई है कि एकदम फट करके निकल जाता है, राइट। तो उसमें भी डिपेंड करता है, और किसमें डिपेंड करता है, वॉकिंग स्पीड में भी डिपेंड करता है, राइट। कितना जल्दी क्रॉस करोगे उसके ऊपर भी इट विल डिपेंड। जैसे ट्रैफिक सिग्नल जब बनाओगे तो वहाँ सिग्नल कितना टाइम के लिए ग्रीन देना चाहिए पेडेस्ट्रियन के लिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एवरेज वॉकिंग स्पीड के ऊपर, ठीक है। हम एवरेज पकड़ लेते हैं कि इतना वॉकिंग स्पीड रहेगा, करना रास्ता, तो रास्ता मतलब क्रॉस करने, you know the speed of the pedestrian, you know the distance he has to cross, so obvious उतना ही टाइम हम ग्रीन देंगे, राइट, डिस्टेंस बाय स्पीड करके। सो एक है वॉकिंग स्पीड, एक है गैप एक्सेप्टेंस, और तुम्हारा परसेप्शन रिएक्शन टाइम भी होता है, और एक है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, सिग्नल्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ओके। गैप एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ये जो बोले थे हम, एक गाड़ी आया, दूसरा गाड़ी आने में इतना टाइम लगेगा या इतना डिस्टेंस के बाद दूसरा गाड़ी आएगा, तो उस गैप के अंदर तुम क्रॉस करोगे कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द गैप एक्सेप्टेंस, ओके। किसी किसी का बहुत कम गैप में वो क्रॉस करेगा, किसी किसी को ज्यादा गैप चाहिए तभी वो क्रॉस करवाएगा, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सिग्नल। ये मतलब है कि तुम जाओ, ये मतलब है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं सिग्नल 18 सेकेंड है, सिग्नल चेंज हो जाएगा, जल्दी से क्रॉस करो या रुक जाओ, ओके। और ये रेड मतलब है डोंट वॉक, नो नीड टू क्रॉस, ये मतलब है क्रॉस करो। इसका मतलब है आइदर क्रॉस करो जल्दी जल्दी या रुक जाओ, रुकने मतलब चेंज होने वाला, रुक जाओ, ओके। अब आते हैं व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो व्हीकल का मेनली यहाँ पे एज पर एज तो अगेन एज तो ये आ रहा है तुम्हारा 4 टाइप का है। पैसेंजर कार मतलब क्या क्या है, मिनी वैन, पिकअप ट्रक्स, एसयूवीज, ये सबको बोलते हैं पैसेंजर कार। बस तुमको पता है, ट्रक पता है, रिक्रिएशनल मतलब जिसके पीछे और एक लगे मतलब गाड़ी ट्रॉली टाइप का होगा, सिंगल यूनिट ट्रक इसमें, ठीक है। सो दीज आर दी रिक्रिएशनल व्हीकल्स। अभी ये कैटेगरी सिर्फ देख लो, ठीक है, ये सब है।
तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी, Okay, ma'am. व्हीकल का भी क्या क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखना है। एक है कि उसका स्टैटिक कंडीशन में, जब वो स्टैटिक कंडीशन में उसका तब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, और एक होगा जब वो डायनामिक, मतलब व्हेन इट इज इन मोशन, तब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कंसिडर करना है। ओके, तो जब ये स्टैटिक में रहता है, तो स्टैटिक मतलब क्या है, दोज कैरेक्टरिस्टिक विच डू नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन विद द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब गाड़ी ट्रैफिक के साथ फ्लो नहीं कर रहा, वो अलग से खड़ा है, तब उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। अब बोल सकते हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। ट्रैफिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए या ट्रैफिक सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमको कौन सा व्हीकल का कौन सा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करना पड़ता है। स्टैटिक मतलब गाड़ी खड़ा है, अब बोलो, गाड़ी मूव नहीं कर रहा है, ट्रैफिक में भी नहीं है, गाड़ी खड़ा है, सामने कहीं पर खड़ा है, तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जिससे ट्रैफिक सिस्टम बनाने में या सिस्टम अच्छे से फ्लो हो, उसमें ये कंसिडर होगा। डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है। एक Yes, है ma'am. डायमेंशन, मतलब लेंथ, हाइट, विड्थ, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। देखो, लेंथ हो रहा है एसएसडी ओएसडी बनाने पे, उसमें डिजाइन करने में। विड्थ हो रहा है लेन विड्थ, शोल्डर विड्थ, पार्किंग एरिया में डिजाइन करने में। हाइट हो रहा है तुम्हारा क्लियरेंस ऑफ ओवरब्रिज, मतलब रास्ते के ऊपर भी एक ब्रिज जा रहा है, तो उसका एवरेज जो हाइट है, मतलब स्टैंडर्ड व्हीकल का जो हाइट है, उससे कितना क्लियर रख के हमको वो फ्लाईओवर देना है। ओके, या अंडर ब्रिज देना है, या इलेक्ट्रिक भी तो जा रहा है, तार वार जा रहे हैं, तो कितना ऊपर देना है क्लियरेंस रख के, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वेट, Yes, ma'am. मेनली वेट आता है कहाँ पे, पेवमेंट डिजाइन। हम लोग जो एक्सल लोड, व्हील लोड, इतना व्हील लोड कर रहे हैं, व्हील लोड की वजह हाँ, से मैं कितना wheel राइट, सो वेट में आ रहा है वो वाला। ओके, टर्निंग एंगल, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग में आएगा, राइट। हाइट ऑफ द ड्राइवर सीट, ये आएगा वर्टिकल कर्व्स डिजाइन में। हाइट ऑफ द हेडलाइट, ये आएगा तुम्हारा वर्टिकल कर्व्स डिजाइन में। ओके, अब डायनामिक मतलब है व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन विद द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये जब मोशन में होगा तब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो अब आएगा स्पीड, स्पीड तो हम Acceleration. लोग डिजाइन स्पीड स्पीड बोले जा रहे हैं, राइट। कितना डिजाइन कर दिए हम लोग, राइट, यूजिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल। हाँ, डीएक्सेलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज जब करते हो तो कितना रेट में इंक्रीज कर रहे हो। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, अगर इंक्रीज हो रहा है तब एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन मतलब है जब डिक्रीज करोगे। ओके मैम। ओके, तो कितना रेट में तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है। ओके, और Yes, ma'am. ब्रेकिंग एफिशिएंसीज। सो दीज आर द व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक, यही इतना ही है। रोड का हो गया, रोड में दो टाइप का है, ड्राइवर और पेडेस्ट्रियन। ड्राइवर का अलग अलग है, विजन, आई, तुम्हारा क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। ओके, Yes, ma'am. तुम्हारा पैसेंजर जो पेडेस्ट्रियन है उसका है गैप एक्सेप्टेंस, वॉकिंग स्पीड, ये सब है, ठीक है। और व्हीकल का है तुम्हारा स्टैटिक, डायनामिक। ओके ओके मैम 250। ओके ओके, ठीक है ओके ठीक है। सो Okay. आज का नहीं है, वेट वेट वेट, ये सॉरी। ओके देन, थैंक यू, जाओ जाओ, तुम लोग का क्लास है अभी। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। लिव कर रहा हूँ मैं।